फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल में प्यारे प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट MCQ। इसमें क्या आता है? इसमें आता है ऑब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, आप सारा क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। चलो आपके दिमाग को ठंडा करते हैं और आपका लोड कम करते हैं। कैसे करेंगे? मैं आज आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका जो ये ओवरलोडिंग है ना, ये ओवरलोडिंग भी जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट MCQ की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ए डैश क्लास इज आल्सो नोन एज टारगेट। कौन सा क्लास को हम टारगेट क्लास बोलते हैं? So the first option is your base. So base class is also known as your parent class. The base class is also known as your super class. The base class is also known as your source. So this option is not relevant. So now we'll talk about derived class. Derived class is also known as your subclass. Derived class is also known as your child class, and derived class is also known as your target class. So that's why the option B is my right answer. And when I am creating a class of static, the methods inside the class must be a static. So it is not related to your target final class. If I am creating, these are called modifiers. Static and final are called modifiers. If I am using final before the class name, then the class becomes final. We cannot create a subclass, or we cannot inherit, we cannot create a derived class from the final class. So that's why target cannot be your final class. So let's check the answer. Yes, we are right. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है। Next question is telling about class members are accessible. It is talking about the accessibility in its own class. Now the next key term is your own class as well as in the subclass. Yes, next key term is your subclass in the same package. These are interrelated terms based on which we will find out the right option. Now it is talking about accessibility. We have private. Private means it is accessible within the class. It is not accessible to outside the class, but it is talking about its own class and subclass. So the next we will have a discussion regarding protected. Now in case of protected, what happens? It is available to the base class, which is known as your super class, as well as to its derived class, which is known as your subclass. So protected can be a right answer. Now we have default also. It is talking about same package also. Now within the same package, if a class is derived from another class, it is accessible to it. Now if it is different package, if it is derivation is made, then it is accessible. If there is no derivation and both are different packages, then protected are not accessible. And default is accessible within the package in which it is declared. It is not available to the other packages. So the correct answer is your option B, that is called protected. Yes, we got it. So the next question is, Gauss principle of OOPS promotes reusability feature. Acha. So it is talking about reusability features. Now first option is your abstraction. What is an abstraction? Abstraction is a mechanism which hides the inner implementation. आपने कैसे implement किया हुआ है उसको वो hide करता है। किससे? External user, जो इसको use करता है। जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हो, आप एक एप्लीकेशन में क्लिक करते हो, एप्लीकेशन लोड होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 आता है। ठीक है, हम लोग एक्सटर्नल यूजर हैं, हम क्लिक करते हैं तो एक एप्लीकेशन लोड होता है, गेम प्ले होता है। बट आप जब क्लिक करते हो, ऐसा कौन सा फंक्शनलिटी हमने लिखा हुआ है अंदर जिससे कि वो इमेज आता है, साउंड आता है, या फिर एक स्टेज आता है, गेम प्ले होता है, ये सारा आपसे छुपाया जाता है, आपसे हाइड किया जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ योर abstraction. So abstraction cannot be called as reusability. Next one is encapsulation. Encapsulation is the mechanism of binding or wrapping or confining the instance variables and methods into a single unit, because of which with the help of object we can access the members. Okay, so encapsulation cannot be also called
reusability feature. Next one is inheritance. In case of inheritance, what happens? The base class or the superclass properties are available to the child class or subclass, because of which the members of the base class can be used in the derived class. तो ये reusability आ रहा है यहाँ पे। जैसे कि आपने बेस क्लास बनाया है एम्प्लॉय, उसमें आपने एक डिस्प्ले फंक्शन रखा हुआ है, so it is displaying the employee information. Now the derived class you have related to your salary, which is also displaying the salary of the employee. Now the salary of the employee belongs to which employee is not specified. So what we are doing, we are calling the base class, super class display function first, which will display your employee information. After that we will call the subclass display function, which will display the salary, because of which we will get the complete information of the employee, that is employee information then salary. अब देखिए यहाँ पे सुपर क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो फिर से रीयूज हुआ, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा सब क्लास में, उसको हमने रीयूज किया. सो दैट्स व्हाई इट प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी योर इनहेरिटेंस. आपको कंफ्यूज करने के लिए बोथ ए एंड बी दिया गया है, बिकॉज बोथ ए एंड बी आर योर oops mechanism, oops features, but these are not related to your reusability. So my correct answer is inheritance. Yes. Well, the next question says that JVM is an DAS. तो ये JVM क्या होता है? JVM stands for Java Virtual Machine, which is used to convert your source code to the byte code. ठीक है, वो क्या है पूछ रहा है. अभी ऑप्शन को देखिए, पता चल जाएगा. JVM is a class. ये तो क्लास नहीं हो सकता. क्लास इज प्रोवाइडिंग अस द फंक्शनैलिटी टू डू समथिंग, बट JVM क्या करता है? कन्वर्ट करवाता है, तो क्लास नहीं हो सकता. बाइट कोड देखो, इंटर रिलेटेड टर्म्स दे दिया गया आपको, जैसे कि आप कंफ्यूज होके इसको राइट मार दो. ठीक है, राइट मत मारना इसको, ये गलत है. नो डाउट इट इज रिलेटेड टू JVM, बट इट इज सेइंग दैट JVM is gas. JVM is not byte code. JVM is converting the source code into byte code. तो ये convert कैसे करते हैं? तो Java provides both compiler and interpreter. These are called your translators. अब compiler का काम क्या होता है? Compiler is used to compile the complete source code. If there is any error, it will show you the error. You will rectify it and you will recompile it. Once it is over, it is completed, then it is going to convert your source code. Fine. Now what is an interpreter? The job of the interpreter is again to translate, but it's a different mechanism. It will do one statement by one statement, not the complete source code. One statement, after that one, if there is an error in this statement, it will stop there. It will stop there. If I will rectify it, then it will move to the next one. Is it clear? So the job of the JVM is to convert. And it is an interpreter who is converting one statement by one statement. An interpreter converts your source code to byte code. So the right answer is JVM is an interpreter. So let's see. Yes, it's the right answer. चलो next question देखते हैं क्या है. Java provides gas type of polymorphism. ये polymorphism क्या होता है? If you write a concept once and will use it multiple times, so then it is called polymorphism. अब polymorphism कितने टाइप का होता है? Basically it is of two type, static polymorphism and dynamic polymorphism. Static polymorphism क्या होता है? If the method overloading is done, method overloading is reusability of the code, is called polymorphism, because एक बार method लिखा, suppose add, which is taking two integer parameters to add, I will write one more add function which will add two double values. So that's why it is method overloading. We are reusing the name of the function, same function name with different parameters. The parameters can be differentiated based on number of parameter and types of parameter. These are your method overloading. Like this, we have another mechanism called method overriding. So base class is having, as already I told you, base class is having a show function. Derived class is also having a show function. So now the signature, what is the heading of the function, is same in both the superclass and subclass. So though the method signature is same in both base class and derived class or superclass and subclass, it is called method overriding. And these two features are provided by your polymorphism. Method overloading is done at the time of static, and
your method overriding is done at the time of execution. That is called dynamic. So we have two different type of polymorphism, that is your static polymorphism and dynamic polymorphism. अब ऑप्शन में से आपका ऑप्शन सी है नंबर 2. तो चलो मिल गया हम लोगों को राइट आंसर. तो चलो थोड़ा चेक कर लेते हैं राइट आंसर है कि नहीं. यस, इट्स राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज among the following which method does not have body. अच्छा, it is talking about method and which not have body. These are the key terms. Okay, so what is a body? Look at this. When I am writing void, void is my return type of the method. Void function name is called add. Suppose I am having a function name is called add. I am passing a parameter called int x comma int y. So int x and int y are called parameters which is passed to the method. Now this is your opening curly bracket, this is your closing curly bracket. These are not appropriate because my drawing is not that much of good enough. So you might have seen these things. Okay, so this is called my body. Fine. Now when I'm talking about a class contains this opening curly bracket and closing curly bracket, provided that it contains like this class, then class, then your class name. Class name is called suppose temp. Okay, class name is your temp and it contains your opening and closing curly bracket. Okay, so a class is also not called a method, so it is wrong option. Next is interface. So what is an interface? An interface is providing your abstract and static methods which is going to be implemented in your subclass. Normally Java does not provide your multiple inheritance. In order to achieve multiple inheritance, we have to take the help of your interface. आपको interface का help लेना पड़ता है. तो interface में तो body होता है, opening curly bracket and closing curly bracket होता है, जिसके अंदर आप final variables declare करोगे और आपका abstract method declare करोगे, उसका तो body होता है. And it is not a method also, interface, so it is also wrong. Next is the abstract. As I said that in case of abstract, the method prototype will be available in the base class and its definition will be done in your derived class. अगर हम इसको बोलते हैं method header, इस header में अगर हम लोग सेमीकोलन डाल देते हैं और इससे ये बॉडी हटा देते हैं हम लोग, तो ये बन गया आपका method prototype. Method prototype does not contains body and your abstract method contains only method prototype in the base class or the super class and its definition. This is called definition. If I am removing this semicolon and I am putting this body, then it called your definition. ये बन गया आपका definition और उसका definition आपका child class में या फिर sub class में होता है. ठीक है. So next one is called constructor. What is a constructor? A constructor is used to initialize the instance variables. What is instance variable? The variable which is declared inside the class is known as your instance variable. अब ये constructor use होता है उसको initialize करने के लिए. अब constructor का भी body होता है. Constructor name is same as class name. अगर class का name temp है तो आपका constructor का name temp होगा और उसका opening and closing curly bracket होता है. So constructor is not right answer. So my answer is your abstract. So yes, we got the right answer. So चलो देखते हैं अब क्या क्वेश्चन आता है हमारे लिए. The parent class of a class is called dash. Parent class of a class. That means it is talking about subclass whose parent class is known as what. So we know that the parent class is also known as your base class. Already we discussed in our question number 1. And parent class is also known as your super class. Parent class is also known as your, yes, if derived class is your known as target class, base class is known as your source class. इसीलिए मैंने बोला था इसका alternate names भी आपको जानना है. ठीक है, अब आ गया ना क्वेश्चन आपके लिए. चलो नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी. सो ये भी ठीक है, बी भी ठीक है, मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी. नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता बिकॉज ऑलरेडी वी गॉट द आंसर. सो लेट्स चेक इट आउट. यस, आई एम राइट.
ऐसे ही आपका भी ऑप्शंस सही लग सकता है। ओनली वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स एंड वी मस्ट बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आप मेरे लास्ट वीडियो तक देखिए, लास्ट क्वेश्चन तक देखिए, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारा टिप्स दूंगा मैं, और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछता है, चलो देखते हैं। ये पूछ रहा है ए प्राइवेट मेथड इज टॉकिंग अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर इज कॉल्ड प्राइवेट, टॉकिंग अबाउट मेथड एंड टॉकिंग अबाउट एक्सेसिबिलिटी। ये तीन चीजों के ऊपर क्वेश्चन है। सो ए प्राइवेट मेथड इज एक्सेसिबल टू, प्राइवेट मेथड कहाँ एक्सेसिबल होता है? चलो पहला ऑप्शन है सब क्लास। So private member is accessible within the class or to its own class. It is not available to your child class or subclass. वो कहाँ पे होता है? Protected access specifier में होता है वो, तो सब क्लास नहीं हो सकता। All the classes in the same package. अगर एक पैकेज में more than one class है, क्या वो सबको मिल सकता है? No. अगर सबको आप चाहिए एक मेंबर या मेथड, अगर सारे क्लासेस को चाहिए within the same package, then it has to be your default. And your default access specifier is also known as your package scope. ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। Now the next option is own class. Yes, this is the correct answer because private members are accessible within the class. Within the class means to its own class. So none of this तो नहीं हो सकता क्योंकि आंसर मिल गया है। Yes, I'm right again. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट एंड टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट वैल्यू। दीज आर द की टर्म्स व्हिच आई एम अंडरलाइनिंग। लाइक दिस यू हैव टू फाइंड आउट द की टर्म्स फ्रॉम द क्वेश्चन। नाउ जीरो इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर, एनी इंटीजर वैल्यू, मे बी योर शॉर्ट, मे बी योर लॉन्ग, डिफॉल्ट इज योर जीरो। नाउ 0.0 ये फ्लोट का गलत है। 0.0f is the default value for float and 0.0 is for your double. Now empty quotes is for string, where string is an object, and for that also, for string also we can have null. Fine, though string is an object, its default value is null, so that's why the default value for any object is your null. अब ये boolean के लिए क्या होता है? boolean के लिए आपका होता है false। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं। Yes, I'm right again. So what is the next question? Let's see. Each object created. Now I'm creating an object. This has to be underlined. Gets a separate copy. Okay. So these two are key terms. So first one is your local variable. What is local variable? A variable which is declared inside a method or inside a scope is called your local variable. And it is accessible within that scope only. When you will come out of it, it is destroyed. So when an object is created, we cannot get the copy of the local variable. Is it clear? It is activated, it is created when the method is called. So ये वाला option नहीं है। Next is instance variable. What is an instance variable? If the variable is declared inside the class, it is known as your instance variable. अब जब हम object बनाते हैं, वो क्या करता है? इंस्टेंस वेरिएबल का एक एक कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट को दे देता है। ठीक है, इसीलिए मैं क्लास बनाया स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाया s1 एंड s2। अब देखिए इंस्टेंस वेरिएबल है आपका नेम। ठीक है, वो नेम का एक कॉपी दे दिया ऑब्जेक्ट 1 को और एक कॉपी दे दिया ऑब्जेक्ट 2 को। उसमें आपने स्टोर किया राम, इसमें आपने स्टोर किया श्याम। तो देखिए ये डिफरेंट कॉपी है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसका है राम, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इंस्टेंस वेरिएबल जो नेम है उसका नेम हो गया श्याम। वो अलग अलग है बिकॉज इट इज एन सेपरेट कॉपी। सो दैट्स व्हाई माय आंसर इज इंस्टेंस वेरिएबल। चलो आगे देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल। ये स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? इफ आई एम डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल ऑफ स्टैटिक, सो क्या होता है? ईच ऑब्जेक्ट विल गेट द सेम कॉपी, सारे ऑब्जेक्ट को सेम कॉपी मिल जाता है। अभी जैसे कि क्लास बन गया अपना स्टूडेंट, ओके, हमने बना दिया वहां पे सिटी, उसको स्टैटिक बना दिया हमने। अब ये सिटी में अगर हम स्टोर कर रहे हैं बरहमपुर, तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट 1 का जो सिटी है वो भी बरहमपुर है, ऑब्जेक्ट 2 का भी जो सिटी है वो भी बरहमपुर है। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, अगर हम जानते हैं किसी एक इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू 90% या फिर 80% ऑब्जेक्ट के लिए सेम है, जैसे कि मेरा सॉफ्टवेयर ज्यादातर उड़ीसा के लिए है, या फिर
मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीटली कंट्री इंडिया के लिए है, मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग फ्रॉम इंडिया, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्री का जो वेरिएबल है उसको स्टैटिक ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका डाटा एंट्री करने की जरूरत नहीं होता यूजर को, ऑटोमेटिकली हर एक ऑब्जेक्ट, जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे उसका कंट्री आपका इंडिया हो जाएगा। अगर किसी को अदर कंट्री के लिए चाहिए तो वो ऑप्शन चूज करेगा वहां पे, ठीक है, वो एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर इफ यू वांट टू ऑटो जेनरेट द रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स, इफ आई मेक द वेरिएबल ऑफ स्टैटिक, तो उसका इनिशियल वैल्यू मैंने दे दिया 1001, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 1001। जब मैं नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसका क्या होगा, 1002, 1003, 1004, बट उससे पहले हमें कॉलेज का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्फाबेट्स होता है वो ऐड करना पड़ता है। तो हम लोग ले लिए उसको स्ट्रिंग, कॉलेज का नाम ले लिया सपोज ST 1001। Now this 1001 is stored in a variable which is integer, not static. Is it clear? Now this string becomes your static because for all the registration number, for all employee code, this ST is common for all the employees or for all the students. So that's why we make it static. अब इन दोनों को हम concatenate कर दीजिए। तो ये जो इंटीजर वेरिएबल लिया था आपने, नॉन स्टैटिक लिया था, इसका वैल्यू था 1001। जब एक नया ऑब्जेक्ट बना, आप उसको इंक्रीमेंट किए कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो बन गया 1002। अब ये स्टैटिक वेरिएबल जो है आप इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दीजिए, तो ST 1002 बन गया ये। अब नया ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर में आपने इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो ये बन गया 1003। अब ये स्टैटिक वेरिएबल आपका ST है, कॉन्कैटिनेट कर दो इसको, ये बन गया ST 1003। तो ये हो गया आपका ऑटो जेनरेशन, ठीक है। अब आपको पता चल गया स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे यूज होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव तो यूज नहीं हो सकता क्योंकि लोकल वेरिएबल अपना रॉन्ग आंसर है। तो माय राइट आंसर इज इंस्टेंस वेरिएबल, यस। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक्स अबाउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। बेटा इसको अंडरलाइन करो। इट इज टॉकिंग अबाउट व्हिच इज नॉट ए फीचर्स ऑफ योर hooks। तो चलो देखते हैं। एफिशिएंट कोडिंग, यस, hooks provides us the efficient mechanism of writing the codes, just 1 minute before I told you in the previous question static variable, ठीक है। ये एफिशिएंट कोडिंग हो गया ना हम लोगों का। और दूसरा चीज ये होता है जिससे आप यहाँ पे कोड को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि हमने किसी इंस्टेंस वेरिएबल को प्राइवेट बना दिया, तो उससे क्या होता है, इट इज एक्सेसिबल टू द मेथड्स ऑफ दैट क्लास ओनली, अदर मेथड्स कैन नॉट एक्सेस इट। तो ये एफिशिएंट कोडिंग ही हो गया, तो ये सही है। मॉड्यूलरिटी, चलो हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं एक कॉलेज के लिए, जहाँ पे हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल होता है, फैकल्टी मॉड्यूल होता है, एडमिन मॉड्यूल होता है। तो डिफरेंट मॉड्यूल बनाते हैं जहाँ पे हम लोग ओनली स्टूडेंट मॉड्यूल में केवल स्टूडेंट फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो स्टूडेंट लोग ही एक्सेस करेंगे। अब टीचर मॉड्यूल बना दिया, टीचर मॉड्यूल में ऐसा फंक्शनैलिटी रखते हैं जो टीचर को यूज होता है बट स्टूडेंट कैन नॉट यूज इट। फॉर एग्जांपल द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय is only needs to be understood or to be accessed as to be seen by the faculties only, not by the students। इसीलिए हमने दो मॉड्यूल बना दिया इसको। तो oops भी अपना मॉड्यूलरिटी फीचर्स देता है। It is talking about not so code reusability as it is providing us the inheritance, method overloading, method overriding। उसमें क्या होता है, हम लोग कोड का रीयूज करते हैं। ऑलरेडी एक कोड बनाया हुआ है, इसको ओवरराइड किया, अपने हिसाब से उसको चेंज किया, हमने यूज किया उसको, ठीक है। तो कोड यूजेबिलिटी हो सकता है यहाँ पे। डुप्लीकेट कोड और डाटा रेडुडेंसी, ये दोनों एक ही चीज होता है। डुप्लीकेट कोड मतलब क्या होता है, वो कोड ऑलरेडी सर्चिंग मैकेनिज्म हमने लिख चुके हैं। एक क्लास में हम लोग सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, सिटी सर्च कर रहे हैं। अब दूसरे क्लास में हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं, स्टेट सर्च कर रहे हैं। अब दोनों का वैल्यूज तो अलग है बट दोनों का डाटा टाइप सेम है। यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, वहां पे भी स्ट्रिंग है, तो चलो उसको रीयूज करते हैं ना, कॉल करो ना उसको, वही मेथड को कॉल करो और यहाँ पे आप भेज दो अपना कंट्री को या फिर स्टेट को भेज दो यहाँ पे, और अंदर एक इफ कंडीशन डाल दो, अंदर एक इफ कंडीशन डाल दो।
अगर आपका ऑप्शन 1 है तो आप सिटी को सर्च करो, अगर आपका ऑप्शन 2 है तो आप स्टेट को सर्च करो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर चलो मान लो यहाँ पे आपका जो पैरामीटर दोनों है स्ट्रिंग है, आप बोलोगे कि सर दोनों का स्ट्रिंग है इसीलिए तो चल गया, अगर डाटा टाइप अलग है तो चलो देखते हैं। एक मेथड हमने बनाया सर्चिंग के लिए, जहां पे हम लोग क्या है कि स्टूडेंट का मार्क्स ढूंढते हैं, ठीक है, किस किस बच्चों ने 90% लेके आए हैं और 90% अबव लेके आए हैं, वो सर्चिंग कर रहे हैं, वहां पे हम डबल भेज रहे हैं, वो सर्च करके हमें रिजल्ट रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या चाहता है, स्टूडेंट का नाम भेजेंगे और स्टूडेंट का नाम के हिसाब से सर्चिंग होगा, तो आप मेथड ओवरलोडिंग लीजिए ना, बट मेथड ओवरलोडिंग सेज दैट मेथड नेम मस्ट बी सेम एंड पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, तो हो गया ना आपका। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कोड तो मुझे नहीं लग रहा ये राइट आंसर है। यस, डुप्लीकेट एंड डाटा रेडंडेंसी इज नॉट द फ्यूचर ऑफ oops. Well, we will see the next question. Next question is that which of the following is talking about the feature we can implement using encapsulation. That means the feature which is implemented by or with the help of your encapsulation. The first option is inheritance. Inheritance is a mechanism which allows us to reuse the code or to get the features or the functionality of the superclass in my subclass. तो इसका तो encapsulation का कुछ relation नहीं है, क्योंकि encapsulation is talking about wrapping or binding or confining the instance variable and the methods into a single unit which is called your class. Fine. उसके बाद चलते हैं ऑब्स्ट्रैक्शन। ऑब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है? ऑब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है आपका, क्या हाइड करता है आपका? आपका डाटा को हाइड कर देता है वो, या फिर कुछ मेथड आप देना नहीं चाहते किसी को, यूजर को एक्सेसिबिलिटी देना नहीं चाहते हो, स्पेशल यूजर को ही देना चाहते हो, तो उसको आप क्या बनाओगे? प्राइवेट बनाओगे। तो ये ऑब्स्ट्रैक्शन हो गया, आपने उसको हाइड करवा दिया। कैसे किया गया है उसका इंप्लीमेंटेशन आप नहीं दिखा रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपको चाहिए एसी ऑन करना है तो रिमोट का ये बटन दबाइए, आपका एसी ऑन हो जाएगा, बट बटन दबाने से एसी कैसे स्टार्ट होता है वो मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगा आपको, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, स्टैटिक एंड डायनामिक दो फीचर्स देता है वो, जिससे आप क्या करते हो, ऑलरेडी एक मेथड है उसको ओवरराइड करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो आप। जैसे कि आप यूज करते हो टू स्ट्रिंग, जावा में आप यूज करते हो टू स्ट्रिंग मेथड, उसका यूज क्या होता है, डायरेक्टली आप लिखोगे system.out.println ऑब्जेक्ट का नाम, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, वो आपका आउटपुट दिखाएगा, वो हर एक मेंबर को आपको नहीं दिखाना है। सो ये क्या हुआ, टू स्ट्रिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल, आप उसको ओवरराइड किया और अपने हिसाब से अपना इंस्टेंस वेरिएबल को दिखाया। तो नेक्स्ट वन इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरलोडिंग, व्हाट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग मींस ऑलरेडी एक मेथड है जो इंटीजर में काम कर रहा है, बट अभी आपको डबल वैल्यू में काम करना है या फिर स्ट्रिंग में काम करना है, तो आप क्या करोगे, वही मेथड नाम ले लोगे आप और पैरामीटर चेंज कर दोगे, स्ट्रिंग दे दोगे, तो मेथड ओवरलोडिंग हो गया। मेरे हिसाब से ये फिट करता है ऑब्स्ट्रैक्शन को, बिकॉज एनकैप्सुलेशन सेज दैट wrapping up of your instance variable and methods into a single unit। अब ये ऑब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, डाटा को आपका हाइड कर देता है। अगर आपका डाटा मेंबर प्राइवेट हो गया तो उसको कैसे एक्सेसिबल करोगे, तो क्लास तो पूरा यूजलेस हो गया ना, तो आप उसमें एक मेथड लिखोगे जो आपका प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करेगा। अब आप क्या करोगे, वही मेथड को आप बाहर एक्सेस करोगे क्योंकि ये पब्लिक है, तो आपका इनडायरेक्ट एक्सेसमेंट हो गया ये। तो मेरे ख्याल से ऑब्स्ट्रैक्शन इज द राइट आंसर। यस, आई एम करेक्ट। आगे भी और भी इंटरेस्टिंग ऐसा टेक्निकल क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको दिमाग में नहीं आ रहा है और ऑप्शंस जो है वो इंटर रिलेटेड है टू द क्वेश्चन, तो वैसे उसके एक्सप्लेनेशन बेस्ड और या फिर उसका कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कोड। अब आपका दिमाग गर्म होने लगेगा, जैसे मैंने बोला था ओवरलोड हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, आराम से बैठ जाओ। कोड आता है तो तुम लोग डर जाते हो, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से होगा। देखिए, which of the following uses encapsulation? अगर आपका एनकैप्सुलेशन
मैकेनिज्म के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कोडिंग कुछ भी नहीं है। एनकैप्सुलेशन बोलता है इट इज अ बाइंडिंग ऑफ योर इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड। चेक करो यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे अपना हो गया क्लास टेस्ट, इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं। void show is the member method. I am having int a is equal to 10 which is a local variable. It is a local variable, but it says that the binding of your instance variable and method. एक तो आपका इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, दूसरा ये वाला लोकल वेरिएबल है, तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्लास टेस्ट बी। उसके अंदर यस आपका इंस्टेंस वेरिएबल है और मेथड है, और मेथड आपका इंस्टेंस वेरिएबल को यूज कर रहा है। और मेथड क्या है, पब्लिक है, which can be accessible outside the class. We can call this method with the help of object. That means accessibility हो गया, but directly accessibility नहीं हुआ। आप x को directly access नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। Only you can access it with the help of your method called show. तो ये बाइंड हो गया ना इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड का। So my answer is your option B. Yes. ऐसे ही आपका आंसर सही बैठेगा। प्रोग्राम डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर आपको उसका एल्गोरिदम समझ में आ गया, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसका फंक्शनैलिटी समझ में आ गया, तो क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फीचर्स, टॉकिंग अबाउट टू फीचर्स, मैचेस ईच अदर। जो दो फीचर दिया गया है उन दोनों में मैचिंग होना चाहिए। चलो देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट हटके क्वेश्चन है ना, ऐसे ही बहुत सारा हटके क्वेश्चन आगे भी है, लास्ट तक देखना है आपको। इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास का फंक्शनैलिटी हम लोग डिराइव क्लास में यूज करते हैं क्योंकि एक्सेस होता है वो। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड मेथड को बाइंडिंग करता है। ये दोनों में तो कुछ इंटर रिलेट है ही नहीं। एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, वही आप जानते हो एनकैप्सुलेशन क्या है। अब पॉलीमॉर्फिज्म चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बोलता है मेथड ओवरलोडिंग, उसमें क्या होता है, या फिर मेथड ओवरराइडिंग, उसके क्या होता है, फंक्शन नेम सेम होता है और उसका पैरामीटर डिफरेंट होता है मेथड ओवरलोडिंग में। मेथड ओवरराइडिंग में क्या बोलता है, वो आपका मेथड नेम पैरामीटर बेस क्लास में और डिराइव क्लास में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर ऑफ द मेथड मस्ट बी सेम इन बोथ सुपर क्लास एंड सब क्लास। तो अब ये दोनों में भी कुछ रिलेशन नहीं है। एनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन, यस इन दोनों में रिलेशन है। अब अब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है, एनकैप्सुलेशन क्या बोलता है, एक मेथड बनाओ जो दोनों में बाइंडिंग करेगा, जिसके बदले से आप ये वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ मेथड ओनली आप एक्सेस करोगे। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब अब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन तो मैंने बता दिया क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म भी बताया था क्या है, इन दोनों में तो कुछ रिलेशन है ही नहीं। माय आंसर इज ऑप्शन सी, एनकैप्सुलेशन अब्स्ट्रैक्शन, यस। चलो बढ़ते हैं आगे आगे, देखिए ये होता है क्या। अब दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कांसेप्ट कम्स अंडर योर पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये फिर से पॉलीमॉर्फिज्म, यही इसके अंदर ही आपका उप्स कांसेप्ट है। अब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, फाइनल, स्टैटिक, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सारे के अंदर ही आपका उप्स कांसेप्ट है, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग, यस इट इज प्रोवाइडेड बाय द पॉलीमॉर्फिज्म। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, दिस इज आल्सो कमिंग अंडर योर पॉलीमॉर्फिज्म। सिर्फ कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड, इट इज आल्सो ए मेथड, ओनली इट इज कॉल्ड अ स्पेशल मेथड बिकॉज़ इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम, बट मेथड में आपका क्लास नेम एंड मेथड नेम अलग होता है। और मेथड में आपका रिटर्न टाइप होता है, अगर मेथड रिटर्न नहीं करता है उसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, बट कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं डाल सकते आप लोग, ठीक है, इसलिए वो स्पेशल मेथड होता है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज आल्सो योर आंसर। मेथड ओवरराइडिंग also provided by the polymorphism, method overloading and method overriding, तो इसीलिए all of the above is the answer. Yes, this is my right answer. So the next question is फिर से कोड आ गया, which polymorphism behavior do you see? चलो थोड़ा देखते हैं। It is talking about polymorphism behavior do you see below class. Polymorphism is method overloading, method overriding, ठीक है। अब
मेथड ओवरराइडिंग इज डन इन द बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। अब ये सिंगल क्लास के बारे में बोल रहा है, सिंगल क्लास के अंदर है, मतलब ओवरलोडिंग हो सकता है पॉलीमॉर्फिज्म का। अब देखिए मेथड ओवरलोडिंग है कि एरर है, यहाँ पे ऑप्शन में एरर नहीं है, फिर भी आपको ये देखना है, अगर एरर ऑप्शन आ गया तो चलो पब्लिक इंट शो, it is taking a parameter return x into x, so method name is show, and here also we have method name show, that means it is method overloading, but provided that method name is same but parameter must be different. The parameter can be differentiated based on types of parameter, this is your types of parameter, and it also can be overloaded based on number of parameter. Parameter यहाँ पे 2 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, तो भी वो overloading हो सकता है। Now there is we are less concerned about the return type. Return type के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि return type same हो different हो। The main point is that method name must be same and parameter must be different. So my answer is method overloading. Look at this. Yes, we have method overloading. देखिए अगर इसको आपको समझ में आ गया तो बाकी फटाफट से आप निकाल पाओगे। ये बोल रहा है method overloading. It is method overriding. It is method overloading. Don't get confused. Method overloading is the right answer. ठीक है, overriding नहीं है। Constructor overloading नहीं हो सकता है क्योंकि constructor name is same as class name. अब ये show है, ये test है, तो constructor overloading नहीं है। All of the above हो ही नहीं सकता। चलो, yes. So if the data member is private, it is talking about private, कौन सा private है, data member को वो private बना रहा है। How we can access, अब ये बोल रहा है access करना है किसको, private data member को, which is known as your instance variable. Access them from the class object, और class object इसको कॉल करने वाला है। तो चलो अगर ये प्राइवेट है तो ऑब्जेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है, तो उसको एक्सेस करेंगे पब्लिक मेथड के थ्रू या फिर डिफॉल्ट, अगर सेम क्लास के अंदर आ रहा है, वो अलग क्लास है तो भी नहीं हो सकता। क्रिएट ए प्राइवेट मेंबर मेथड, प्राइवेट, अब ये मेंबर मेथड तो प्राइवेट बन गया, तो आप मेथड के थ्रू प्राइवेट डाटा मेंबर इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने वाले थे, अब ये तो आपका मेथड ही प्राइवेट बन गया, सो वी कैन नॉट एक्सेस द मेथड बिकॉज मेथड इटसेल्फ इज प्राइवेट, सो इट इज नॉट द राइट आंसर। क्रिएट ए प्रोटेक्टेड मेंबर, नाउ इफ यू मेक इट ए मेथड कॉल्ड प्रोटेक्टेड, देन it can, the method, if it is in the same class, the protected method can access the private instance variable, is it clear? But if it is derived class, then protected method cannot access the private member of the superclass, तो ये भी गलत है। और number 2 is that protected method cannot be accessed via object, okay, चलो next is private data member can never be accessed from outside class, ये तो सबको पता है, ये नहीं पूछ रहा है कि एक्सेसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है कैसे एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्रिएट पब्लिक मेंबर फंक्शन और मेथड टू एक्सेस द डाटा मेंबर और इंस्टेंस वेरिएबल, ये सही है। इंस्टेंस वेरिएबल प्राइवेट बन गया, मेथड पब्लिक बन गया, तो मेथड कैन एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल और ये मेथड को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ये पब्लिक है तो इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी, यस। अभी और भी मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखा ये एक नया क्वेश्चन है ना आपके लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, व्हिच पॉलीमॉर्फिज्म कांसेप्ट इज अप्लाइड टू इनहेरिटेंस, इट इज टॉकिंग अबाउट the relationship between the polymorphism and inheritance, where the concept of polymorphism is applied in inheritance, clear? So method overloading, so method overloading is done within the same class where method name is same and parameter is different, but it's talking about inheritance, that must be a superclass and subclass. Constructor overloading, so constructor cannot be inherited, so inheritance यहाँ पे failure हो गया, तो चलो ये गलत हो गया। मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग इज डन, दैट इज द सेम मेथड नेम इन द सुपर क्लास एंड द सब क्लास, सिग्नेचर इज सेम, ओके, सो मेथड ओवरराइडिंग इज द परफेक्ट आंसर, सो माय आंसर इज मेथड ओवरराइडिंग, इट इज करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पॉलीमॉर्फिज्म, अगेन दिस इज टॉकिंग अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, which polymorphism concept is applied to inheritance, it is talking about
the relationship between the polymorphism and inheritance, where the concept of polymorphism is applied in inheritance. Clear? So method overloading. So method overloading is done within the same class, where method name is same and parameter is different, but it's talking about inheritance. That must be a superclass and subclass. Constructor overloading. So constructor cannot be inherited. So inheritance यहाँ पे failure हो गया, तो चलो ये गलत हो गया. Method overriding. Method overriding is done. That is the same method name in the superclass and the subclass. Signature is same. Okay. So method overriding is the perfect answer. So my answer is method overriding. It is correct. So let's see the next one. Following code is an example of. ये code किस concept के ऊपर है? Class name is test and the method name is, so it is taking in a parameter, whatever it may be doing over here. Now in this case we have to go through the options. Option says that method overriding. Method overriding is talking about that the superclass and subclass must contain the same signature. Signature means this is your signature of the method, which contains your return type, method name, parameter if any. And if the parameter is also available of type integer, subclasses also must contain the parameter of type integer. If the superclass method is taking one parameter, subclass must take one parameter. So that's why signature must be same. Now यहाँ पे फटाफट से चेक करते हैं. यहाँ पे inheritance हुआ है. This is your subclass. This is your superclass. Inheritance is made with the help of your keyword called extends. अगर ये interface होता तो आप लोग यहाँ पे implements use करते. Implements. Okay. Public int show. Look at this signature. Public access specifier is same and your return type is same. Your show method name is same. Data type of the parameter is same. Variable can be anything. Variable can be anything. Number of parameter 1, number of parameter 1. That means method overriding. Is it clear? Yes, method overriding. चलो next one. अरे वही पूछ रहा है. Following code is an example of. Now we are having class test, method overloading, method overriding, constructor overloading. Fine. These are the options. यहाँ पे आइए, class name is test and your method name is test. That means it is constructor. Now it is having more than one constructor. That is constructor overloading. फट से चलते हैं. अपना मिल गया option constructor overloading answer. बेटा गया, गलत हो गया. Don't forget we have an error option also. Error check करो. ठीक है. Instance variable semicolon, constructor name is same as class name, does not have return type. Okay. Does not take any parameter. Default constructor. X is equal to 10. Semicolon is there. X is an instance variable. X is declared. It's okay. Constructor name is same as class name. No return type. No parameter. Default constructor. X is equal to 20. सब तो सही है. गलत क्या है? हम आपको डरा रहे थे. डरा नहीं रहे थे, आपको वार्न कर रहे थे. अच्छी तरह से देखो. Method overloading says that method name same and parameter must be different. Look at over here. It is not taking any parameter. Here also it is not taking any parameter. That means it is an error. Is it clear? Default constructor cannot be overloaded. यहाँ पे आपको क्या सीखना है? अगर आपको ये पता है default constructor cannot be overloaded because it is not taking any parameter. parameter है ही नहीं, आप difference कैसे करोगे उसमें? तो अगर आपको ये पता है तो आपका 1 मिनट का खेल है, आप डायरेक्टली मारोगे एरर. समझ में आया? अच्छा लगा मेरा वीडियो? क्वेश्चंस? ठीक है. दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन. फिर से आऊंगा आपके लिए और नया क्वेश्चंस लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और इसमें जो क्वेश्चन सिलेक्शन किया गया है वो भी पसंद आया और आपको लगा कि आपका अभी ऊप्स कंसेप्ट थोड़ा बहुत क्या, मुझे लग रहा था बहुत कुछ क्लियर हो गया है आपका कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब आप इंटरव्यू में जो आपका कंफ्यूजन होता है या फिर एग्जाम में आप जो ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज हो जाते हो, ये सारा मेरे ख्याल से हट गया है आपका.
और वो जो नर्वसनेस आता है वो नर्वसनेस भी हट जाएगा, क्योंकि आप अभी कॉन्फिडेंट हो कि मुझे अभी उस कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर सब कुछ क्लियर है तो थोड़ा जाके लाइक बटन तो मार दो, और आपको अगर कुछ और भी वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे लिखो, तो मैं आपके लिए फिर से वीडियो बनाऊंगा और आपको भेज दूंगा, और आप उसको देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना। ठीक है। अरे रे रे, 1 मिनट, अभी तो आपने सब्सक्राइब बटन नहीं मारा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब बटन मारोगे तो ये सारा वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें आपको जावा भी मिलेगा, पाइथन भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, फंडामेंटल्स भी मिलेगा। ठीक है, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं मारोगे, बेल बटन नहीं दबाओगे, आप मुझे कैसे एनकरेज करोगे ऐसा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, बाय बाय।